Hello friends, welcome to Unacademy Gate MEPIXE. This is your educator Aprup Rao and you are watching Concepts in Minutes, where within a few minutes I am going to cover a very interesting topic. Today in this video I am going to tell you how and why a column buckles. We all have heard this term buckling of columns. हमने सबने buckling of columns बहुत बार सुना है. बट डू यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बकलिंग? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि बकलिंग का मतलब होता क्या है? अगर एक कॉलम बकल कर रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन how and why a column buckles. So beta, this is a very interesting video series that I have recently started, in which I am going to cover very interesting concepts related to your exams, related to your interviews. And beta, these video will be of very few minutes, 5, 10, 15 or maximum 20 minutes. तो बेटा ये एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज है कॉन्सेप्ट्स इन मिनट्स, जिसमें मैं हर एक वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करता हूं. दिस कैन बी अ वेरी कंसेप्चुअल वीडियो. आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखने को भी मिलेंगे. ओके, सो बेटा, इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अप्रूप राव, all India rank 320 in GATE Mechanical. I have done my MTech from IIT Kharagpur and my specialization was design. In my final year of MTech, I was recruited by Mahindra and Mahindra and I worked in the field of design of cars for 2 years. Then I decided to quit my job and I started teaching. So I've been teaching for more than 6 years now and I teach subjects related to design: SOM, MD, EM and TOM. Now beta, let's start with today's video. Columns. So what exactly are columns? Columns are basically structural members. Columns structural members होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. They are used in order to support the axial compressive loads. You can see columns in your buildings also. You can see columns in your rooms also. Okay, the pillar that is supporting the beam, that is supporting the roof, is known as column because it is subjected to axial compressive loads. Okay, now beta, columns fail due to buckling. The cause of failure in column is buckling. What is buckling? Understand beta. Columns are long structural members. The length of column is very high compared to its lateral dimension. Lateral dimension means beta, this is the length. Okay, so this dimension and this dimension, if y dimension is the length dimension, then x dimension and z dimension are lateral dimensions. Okay, so compared to the lateral dimension, the length is very high. So beta, in these types of structures, in these types of elements, what happens if I apply a load which is compressive, then beta, this happens. What is this? This is lateral bending. ये क्या है? This is lateral bending. इसको हम क्या बोल सकते हैं? It is known as lateral bending. Okay, if the length is less, then bending will not happen. अगर आपकी कॉलम की लेंथ बहुत कम है तो आप अगर इसको दबाओगे भी, if you compress it, it is not going to buckle. But अगर लेंथ बहुत ज्यादा है and then you compress it, then beta, it is going to buckle like this. It is going to bend like this. Okay, now why this happens? Why buckling happens? Understand. Okay, so in order to understand the concept of buckling, I have considered a very simple example. Okay, let's say we have a rigid bar. ये क्या है? ये एक rigid bar है. Understand beta? In order to understand the effect, I am considering a rigid bar. Okay, this rigid bar is connected to a spring at this end and it is connected to a hinge support at this end. ये जो rigid bar है, इसको दो जगह से support मिल रहा है. It is connected to a pin here and it is connected to a spring here. The spring has a stiffness K. The length of the bar is L and it is subjected to a compressive force P, axial compressive force P. Now beta, understand about this support B, what moments will be acting. Let's understand that. Okay, so in order to understand the effect of buckling, what I am going to do is I am going to assume that this bar
is deflected towards the left side. You can assume that it is deflected towards the right side. आप लेफ्ट साइड भी डिफ्लेक्शन अज्यूम कर सकते हो, राइट साइड भी डिफ्लेक्शन अज्यूम कर सकते हो. सो लेट मी अज्यूम दैट दिस बार इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाइक दिस. ओके, इनिशियली द बार वाज लाइक दिस, it was vertical, and now the bar is like this. Okay, this was point A, this was point A, point B, and now this is the new point A dash. Okay, now understand beta, there was a force P acting here, now it is acting here. Now this end is connected to the spring, so when this end will move towards the left side, there will be deflection in the spring. Let's assume that this deflection is x, so there will be a spring force acting at this point due to this deflection. The deflection in the spring is x, spring में x deflection हुआ है, तो स्प्रिंग की वजह से इस बार के ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स? इट विल बी इक्वल टू kx. इट विल बी इक्वल टू kx. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स? तो बेटा डायरेक्शन अंडरस्टैंड करो. तो बेटा हो क्या रहा है, आई एम मूविंग द स्प्रिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सो द स्प्रिंग विल ऑब्वियसली ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, है कि नहीं? स्प्रिंग जो है वो राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगा, सो द स्प्रिंग फोर्स विल बी टुवर्ड्स द राइट साइड. ऐसा होगा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड बेटा, अबाउट दिस पॉइंट बी देयर आर टू मोमेंट्स एक्टिंग. इस पॉइंट बी के अबाउट दो मोमेंट एक्ट कर रहे हैं. ओके, इस पॉइंट बी के अबाउट दो मोमेंट एक्ट कर रहे हैं. देयर इज अ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स P which is acting anti-clockwise. Okay, there is a moment of force P which is acting anti-clockwise. Okay, moment of P about point B is equal to how much? P into x. Okay, and there is a moment of this spring force Kx. There is a moment of this spring force Kx which is acting clockwise. Moment of Kx about B will be equals to how much? Kx multiplied by L. तो बेटा यहां पे B के अबाउट दो मोमेंट एक्ट कर रहे हैं, एक P का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज और एक kx का मोमेंट क्लॉकवाइज. दिस मोमेंट ऑफ फोर्स P इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट. ये जो फोर्स P का मोमेंट है ये इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स का मोमेंट है ये इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? द मोमेंट ऑफ फोर्स P इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट दिस बार अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. जो मोमेंट है P का वो इस बार को इनिशियल पोजीशन से दूर ले जाना चाह रहा है, और जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मोमेंट इसको वापस लेके आने की कोशिश कर रहा है, यानी रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है. ओके, अब मेरे भाई लेट्स से द मोमेंट ऑफ kx इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ P. अगर kx का मोमेंट P के मोमेंट से ज्यादा हुआ देन बेटा इट विल बी स्टेबल. उस कंडीशन में ये क्या रहेगा? स्टेबल. अगर P का मोमेंट kx से ज्यादा हुआ देन इट विल बिकम अनस्टेबल. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान से समझो. इफ px is greater than, less than, if px is less than kx into L, it will be stable. Why?
क्योंकि रिस्टोरिंग मोमेंट ज्यादा है, जो रिस्टोर कर रहा है वो मोमेंट ज्यादा है और जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो मोमेंट कम है। तो मेरे भाई ये स्टेबल रहेगा। इफ px is greater than kx into l, मतलब डिफ्लेक्ट करने वाला मोमेंट ज्यादा है, देन इट विल बिकम अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा? देखो, स्टेबल होने का मतलब है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अनस्टेबल अगर हो गया तो फिर ये डिफ्लेक्ट करता चला जाएगा, राइट? बट इफ मोमेंट ऑफ px इज इक्वल टू kx इंटू l, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या है? क्रिटिकल कंडीशन इज द कंडीशन व्हेन द डिफ्लेक्टिंग मोमेंट एंड रिस्टोरिंग मोमेंट आर जस्ट इक्वल। ये कंडीशन आपका मार्जिन है। If the moment of px is slightly greater than this, it will become unstable. तो बेटा आपका जो मोमेंट ऑफ p है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के मोमेंट से कम होना चाहिए, रिस्टोरिंग मोमेंट से कम होना चाहिए। उसके बराबर या उससे ज्यादा हो गया देन द कॉलम विल फेल। तो इसका मतलब क्या है बेटा? आप हमेशा कोशिश करोगे कि ये मोमेंट जो है वो हमेशा इससे कम रहे। अब इस केस में क्या हो जाता है, जब क्रिटिकल कंडीशन आती है तो कॉलम को हम मान लेते हैं ये क्या हो गया? बकल हो गया। ठीक है, तो बेटा कॉलम बकल क्यों होता है? व्हाई कॉलम बकल्स? व्हेन द मोमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन बिकम्स ग्रेटर देन द रिस्टोरिंग मोमेंट। जो मोमेंट इसको रिस्टोर करता है, वापस लेके आता है, उससे अगर डिफ्लेक्टिंग मोमेंट ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। ओके, तो बेटा आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग। बकलिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि बकलिंग का मतलब क्या है बेटा? अगर मोमेंट ऑफ px इसके बराबर हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। अगर इसका मोमेंट इस मोमेंट से थोड़ा भी ज्यादा हो गया देन इट विल बिकम अनस्टेबल। ओके, तो ये हमेशा स्टेबल होना चाहिए। जब तक मोमेंट ऑफ दिस लोड इज लेस देन रिस्टोरिंग मोमेंट, तब तक ये स्टेबल है। अगर रिस्टोरिंग मोमेंट कम पड़ गया और डिफ्लेक्टिंग मोमेंट ज्यादा हो गया देन इट विल बिकम अनस्टेबल एंड देन इट इज गोइंग टू बकल। ओके, तो यहां अगर आप किसी एक सेक्शन में मोमेंट लेके देखें तो आपको यहां पे भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एक मोमेंट रहेगा जो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा और एक मोमेंट रहेगा जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो मोमेंट जब तक कम है और रिस्टोरिंग मोमेंट जब तक ज्यादा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिस्टोरिंग मोमेंट कम पड़ गया और डिफ्लेक्टिंग मोमेंट ज्यादा हो गया तो फिर ये बहुत ज्यादा इस तरफ बकल करने लगता है, इस तरफ डिफ्लेक्ट होने लगता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बकलिंग। जिसको हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा कि अगर रिस्टोरिंग मोमेंट कम पड़ गया, डिफ्लेक्टिंग मोमेंट ज्यादा हो गया तो ये बहुत ज्यादा ऐसा झुक जाएगा। वही चीज यहां पे ऐसे इस तरीके से हो रही है, बेंडिंग के फॉर्म में हो रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बकलिंग। और बकलिंग अगर हो गई तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉलम क्या हो गया? फेल हो गया। तो बेटा बकलिंग को अवॉइड करने के लिए ये जो लोड है ये कम होना चाहिए ताकि ये मोमेंट कम रहे। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू वी यूज? वी यूज यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग। ओके, विच इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग अलग है। Here I was just trying to explain exactly what is buckling. उसको explain करने के लिए I considered a rigid bar. एक्चुअल में बार रिजिड तो होगा नहीं, एक्चुअल में बार जो है वो बेंड होगा। ठीक है, यहां पे मैंने रिजिड बार कंसिडर किया है, बट कॉन्सेप्ट वही है। यहां पे बार इतना झुक रहा है और यहां पे ये जो बीम है, कॉलम है, ये बेंड हो रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे यहां पे ये एक तरफ झुकता चला जा रहा है, यहां पे ये एक तरफ बेंड होता चला जा रहा है, एक तरफ डिफ्लेक्ट होता चला जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर इस लोड का मोमेंट बहुत ज्यादा हो गया और रिस्टोरिंग मोमेंट कम हो गया तो फिर ये बहुत ज्यादा बेंड होना चालू हो जाएगा, विच इज नोन एज बकलिंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब बेटा अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम, व्हाट इज बकलिंग, व्हाट इज यूलर्स थ्योरी, इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूलर्स थ्योरी, then beta just open this one link tinyurl.com/approve10.
go to any web browser right now, कोई भी web browser खोलो and open this site tinyurl.com/approve10 and you are going to find all my video lectures completely free. You are also going to find the notes of that lecture. Okay. You can also follow my personal Telegram channel if you don't want to miss any of my class. The link and notification of all my class are updated on daily basis in this channel. So follow this channel and watch all my classes regularly. And beta, if you want to study with us in a more structured manner, अगर हमारे साथ एक structured course में पढ़ना चाहते हो, पूरा कोर्स लेना चाहते हो, अगर आपको डेली असाइनमेंट चाहिए, क्लासरूम लाइक एनवायरनमेंट चाहिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, then take Unacademy Plus subscription. Okay, but don't forget to use my code approve10. If you use this code approve10, then you are going to get 10% off. तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही है, साथ में आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है. Okay, you will be under my personal guidance if you use this code approve10 in order to prepare, in order to get the subscriptions. Okay, so subscribe today on Unacademy Plus and start your preparation in a serious manner with us on Unacademy Plus. Okay, now before leaving, don't forget to hit the like button, share this link, and if you are new to our channel, subscribe this channel so that you will get 100% awesome content. Okay, I will see you in another video. If you have any suggestions for me, write in the comment section. If you want me to make videos on certain concepts, write in the comment section. I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you so much.